Okay, so in today's class, we will be discussing some standard methods of solution. We will be discussing standard methods of solution and some of the methods of solution I have when it comes to pseudocode. So the first method I have is your totaling. Another method is to be known as of your counting. Then you can also calculate your maximum and minimum values. You can also calculate your average. And then I have is your linear search. And last I have is your bubble sorts. So this is all what we are going to discuss in your standard methods of solution that you will be used in working with your pseudocode. Whenever there is an exam and a question, you will be asked to implement similar approach. Like you could be asked to apply any of the approach from these. So this is why it is important that you should know that how we are working with them. So the first area that we are going to discuss is going to be your totaling. So totaling basically means that you are keeping a total value. It means that you are keeping a total that values are added to. Like for example, adding a total of all of them. For example, keeping running a total of marks and then awarding it to each student. So for example, I can write it like for the totaling area, I first need to initialize the total as 0. Then I'm going to apply the for counter right here. The for counter which is equals to 1 to your class size, and in your class size you can enter any of the value like whatever is of your class size. For example, if it is 1 to 30, if it is 1 to 25, here I have taken a variable which is a class size. The next area for totaling is that you need to take a total and then you need to add all of the values into that. That means that whatever the value should be in your total, it should be an addition of total plus out of your student marks that are included into your list, and the name of the list is counter, and you have your next counter. So basically in this question, the first thing that you have completed right here is that you have initialized the total to 0. That means that this is your starting point. The next area is that you have taken the loop, like that is starting from for counter 1 to class size. And then in the third area, you have started it as a total. And in your total, what you are doing is that you are taking a total of your students' marks that are included into your counter. Your counter basically goes like, for example, you have counter 1, you have counter 2, and for example, you have a student named Ali at counter 1. So Ali's marks are totally going to be added into your student marks. So for example, if this is Ali and then all of the marks of Ali are added into student marks, and student marks is out of your counter. So this is what I have written here. Student marks counter, that means that all of the total marks that are added into this. For example, this is Mr. Ali. Mr. Ali, all of the marks of them is being totaled and they are stored into this variable. And what is the name of the variable? The name of the variable is your student marks.
and student marks is containing in a list called counter, because Ali is the first student in the list. So this means that whatever the value is in your student marks plus adding the value of your total, and they should be added into this value. So this is your totaling. Do you have any confusion in this? सर समझ नहीं आया। बेटा देखो, टोटल को सबसे पहले मैंने जीरो कर दिया। ये जो मेरा प्रोसेस है ये क्या है? इनिशियलाइजेशन। का। इसके बाद सेकंड पे मैंने क्या किया है? फॉर काउंटर 1 to क्लास साइज। 1 to क्लास साइज का मतलब ये है कि क्लास साइज के अंदर आप बाद में जाके कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। आप यहाँ पे वैल्यू दे दो 30, 40, 25, जो भी आपका क्लास का साइज है, जो भी आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर है, वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं। इसके बाद जो वेरिएबल है उसका नाम क्या है? टोटल। लेकिन ये टोटल कैलकुलेट कैसे हो रहा है? सबसे पहले टोटल प्लस अगर कोई एग्जिस्टिंग वैल्यूज टोटल के अंदर है, अभी से एग्जिस्टिंग वैल्यूज टोटल के अंदर क्या है? जीरो। ये दी हुई, इनिशियलाइज किया हुआ है। टोटलिंग करने के लिए और आप क्या कर रहे हो? आपने यहाँ पे प्लस कराया स्टूडेंट के मार्क्स। स्टूडेंट के मार्क्स किसमें से? काउंटर। काउंटर में से। स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे अली के? फॉर एग्जांपल 30 थे। और काउंटर कौन क्या था? फर्स्ट काउंटर चल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? काउंटर 1 to क्लास साइज। जब ये काउंटर 2 होगा तो ये भी चेंज होता रहेगा, दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स टोटल होते रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे टोटल के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 30। 30। और उसके बाद जब 1 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये 2 पे चलेगा। 2 फिर ये होगा 2 ऑफ क्लास साइज, 3 ऑफ क्लास साइज, 4 ऑफ क्लास साइज, 5 ऑफ क्लास साइज। इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं। अच्छा, इसके बाद है मेरे पास यहाँ पर काउंटिंग, जो मेरा सेकंड स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है। काउंटिंग, और काउंटिंग के अंदर क्या होता है? आई बेसिकली कीप्स अ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स एन एक्शन इज परफॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल कितनी दफा एक एक्शन आपके पास बार बार परफॉर्म हो रहा है, काउंटिंग के मेथड के अंदर ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मेरे पास एक सिनेरियो है, और उस एक सिनेरियो के अंदर क्या है बेटा? इज दैट आई एम काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वर पास। मुझे ये काउंट करना है कि मेरी एग्जाम्पल के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास हो गए हैं। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट लाइक, सबसे पहले मैं अपने पास यहाँ पे लिखूंगा पास काउंट, और पास काउंट को मैं इनिशियलाइज करा दूंगा 0 से। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा अपने काउंटर को। फॉर काउंटर इज अगेन गोइंग टू बी 1 to ऑफ योर क्लास साइज। इसके बाद हमने इनपुट कराया स्टूडेंट्स के मार्क्स को, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि इफ स्टूडेंट मार्क्स आर ग्रेटर देन 50, then pass count should be सर pass। आउटपुट नहीं लिखेंगे? आउटपुट कहाँ? एंट्री कैसे करेगा स्टूडेंट? बताता हूँ।
एंटर तो बेटा इनपुट से हो जाएगा ना, इनपुट उसके पास तो नहीं होगा ना, हम्म। उसके पास शो कैसे होगा? उसके पास शो करने के लिए यहाँ पे एक लाइन हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आउटपुट एंटर स्टूडेंट मार्क्स, अब शो हो जाएगा उसके पास, फिर वो एंटर करेगा। ठीक है। फिर अगर तुम नहीं लिखते तो कोई मसला होता? अभी मैं प्रैक्टिस करवा रहा था तो मैंने मिस कर दिया, लेकिन आपने लिखना है, लिखना है, क्योंकि जब Right. तक यूजर को पता नहीं चलेगा कि क्या एंटर करना है, डायरेक्ट हम नहीं ले सकते ना इनपुट। अच्छा, अब राइट इनटू दिस एग्जांपल, द फर्स्ट थिंग इज दैट मैंने अपने पास जो पास काउंट है इसको क्या कर दिया, 0। मेरे पास जो मेरा पास काउंट का बॉक्स है इसको भी मैंने कर दिया यहाँ पे 0। उसके बाद मैंने क्या कराया, फॉर काउंटर 1 टू क्लास साइज, मतलब ये कि 1 से लेके आपकी क्लास का साइज कितना है, 25 है, 35 है, 40 है, ये क्या है। ठीक है। सबसे पहले काउंटर चलेगा 1, मतलब ये कि एक मिसाल ले लेता हूँ कि अगर मेरे पास क्लास साइज ये है और एक क्लास के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले क्या चल रहा है, फॉर काउंटर 1 टू क्लास साइज, तो पहले पहले स्टूडेंट का चल रहा है। ठीक है। फॉर 1 टू क्लास साइज उसने क्या करा, कहा कि आउटपुट कराया आप एंटर द स्टूडेंट मार्क्स, देन यू नीड टू इनपुट योर स्टूडेंट मार्क्स, एंड if the marks entered are greater than 50, so what does this mean? This means that you need to increment a value into your pass count like this, and then you move on to the next counter. Next counter means the second one, and your count is also going to be incremented. So right here in this way you are basically counting the number of स्टूडेंट्स हु पास। इसी तरह से आप फेल भी कर सकते हो कि फेल काउंट लगा दिया और इसको हमने साइन हमने चेंज कर दिया। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। अच्छा, right now what we were working on, we were working on काउंटिंग अप, काउंटिंग। मतलब मैं काउंट जो हूँ ऊपर की तरफ करता जा रहा था, लेकिन सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ जिसके अंदर मैं काउंट डाउन करूँ, जैसे कि इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो रही है, तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि किसी भी वैल्यू को मुझे डिक्रीमेंट करना है तो मेरी वैल्यू डिक्रीमेंट कैसे होगी, तो वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है नंबर ऑफ स्टॉक है, तो नंबर ऑफ स्टॉक को मैं यहाँ पे असाइन कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ स्टॉक को आप कर दो -1, जैसे मैं ऊपर कर रहा था काउंटर +1, और ये कब जी। होगा, इफ योर number of stocks means that the items that are added into your stock are less than 20, then call reorder। अच्छा, ये जो कॉल रीऑर्डर है ये मैं आगे जाके समझाऊंगा कि ये कॉल और रीऑर्डर क्या है। ठीक है। फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस, दैट this area that you can decrement that as well, and for understanding call you can take it like, for example, if I am calling another written algorithm by calling it from a name, so when I want to call it I write it like call reorder. So what it do is that the algorithm that is written with the name reorder, that is going to be called here and that is going to be performed here. So any confusions in this? नो।
Now the next thing is that we need to discuss is your maximum and minimum. So in your exam, you could be either be asked to calculate either the maximum or the minimum or the highest or lowest point in any of your pseudocode. But there is a simple rule to perform this, and the simple rule is that for writing this algorithm, you have to declare the highest value, the one with the lowest, and for your lowest part, you have to declare the one with highest or vice versa. Like if I'm calling out for your maximum value, then you have to declare it with the minimum. And if I'm calling out for your minimum value, you have to declare it with the maximum one. And why I do that, we are going to discuss this in just after I complete this algorithm. So for this, I'm going to start with the first thing that I'm going to have my maximum marks of this to be declared as 0, because as discussed, the maximum marks are going to be the lowest. Then I'm going to take the minimum marks as your 100, which means the highest one. Just after the initialization, I'm going to start the loop by for counter. That for counter 1 to class size. That means that the number of students right here, and now I'm going to apply the loop that if student marks of your counter are greater than your maximum mark, then what you need to do is that your maximum mark should be declared as student marks counter, and if similarly if student marks counter are less than of whatever the value is in your minimum marks, then minimum marks should be whatever is there in your student marks counter, and then and if and next counter. So let's discuss this. For discussing this algorithm, I have my maximum mark, then I have my minimum mark, then I have my counter,
So let's discuss this. First of all, by starting this algorithm, you have your maximum marks as 0. So the value of 0 is going to be entered here. You have the minimum marks as 100. So the minimum value 100 is going to be entered here. For counter 1 to class size, the counter is 1. If student marks, so let's take certainly an example of your student marks, and let's say that I have a student marks of 40. The condition says that if student marks counter, it says that whatever the value of the student marks is, जो भी value student marks की है 40 और counter क्या चल रहा है अभी 1 is greater than your maximum marks. Maximum marks में value क्या है 0. तो आपके पास जो ये पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू किस में आ जाएगी? आपके मैक्सिमम मार्क्स में. दैट मीन्स के जो स्टूडेंट मार्क्स हैं ये कहाँ पे आ गए बेटा मेरे पास? यहाँ पे 40. मैक्सिमम। और ये एंड हो गया. इसी के बाद अगर मैं एक और वैल्यू अब यहाँ पे एंटर करता हूँ, लेट से अब एक लूप तो मेरे पास चल गया, अब यहाँ पे मैं एक और वैल्यू एंटर करता हूँ, लेट्स टेक इट 30. तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आएगा 30 के अंदर मैक्सिमम 40 चल रहा है मेरे पास, मिनिमम मेरा 100 है, काउंटर मेरा 2 है, स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 है. अब 30 क्या ग्रेटर देन है 40 से? लास्ट वैल्यू क्या थी 40. ये वैल्यू ट्रू हो रही है? नहीं. तो बेटा ये नहीं। आपके मैक्सिमम में नहीं आएगा, मैक्सिमम में आए सेम ही वैल्यू रहेगी. अब नेक्स्ट पे आ जाओ. अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट मार्क्स काउंटर. स्टूडेंट मार्क्स कितने हैं हमारे पास? 30. काउंटर कौन सा चल रहा है? 2. अगर ये लेस देन है कितने? मिनिमम मार्क्स है. मिनिमम मार्क्स अभी कितने चल रहे हैं यहाँ पे? 100. अगर ये वैल्यू आपके पास इससे कम है तो ये क्या कर दो? मिनिमम मार्क्स. तो दिस इज वाई. तो यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 30. और काउंटर 2 चलेगा. आर यू गेटिंग इट? यस। अगर मैं इसको इस तरह से कर देता, फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम को 100 कर देता और मिनिमम को मैं 0 कर देता, तो ये जो वैल्यूज यहाँ पे आ रही है ना, ये वैल्यू स्वैप हो जाती है एक दूसरे से और गलत आंसर आ जाता. इसको देने का मकसद ये है कि फर्स्ट ट्राई में आपके पैरामीटर्स और आपकी वैल्यू सेट हो जाए कि आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है. अब फॉर एग्जांपल 40-30 चल रहा है, अगर मेरे पास वैल्यू 50 आ गई तो ये यहाँ पे चेक करेगा. इफ 50 इज ग्रेटर देन 40, हाँ है, तो 50 यहाँ पे आ जाएगा एंड सो ऑन. इज दिस क्लियर? यस सर, मैक्सिमम में मैक्सिमम क्यों नहीं लिखते? बेटा यही बता रहा हूँ मैं आपको कि मैक्सिमम में मैक्सिमम क्यों नहीं लिखते. क्योंकि अगर अभी मैक्सिमम के अंदर ये जो पूरा काम किया है ये इसी वजह से बताया है कि अगर मैक्सिमम के अंदर मैक्सिमम की सबसे ज्यादा वैल्यू हमने लिख दी तो ये जो मिनिमम है ये यहाँ पे आ जाएगा और मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी. अभी जो मैंने समझाया है वो गौर से सुना है? जी। देखो, फॉर काउंटर 1 टू क्लास साइज, तुम ना यार गौर से नहीं सुनती हो बात को. दोबारा से सुनो. ये मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? क्या वैल्यू है मैक्सिमम की बताओ? 0। 0। मिनिमम की क्या है? 100। अब गौर से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ. ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम, ये है काउंटर, ये है स्टूडेंट के मार्क्स. आप क्या कह रही हो? मैक्सिमम रख दूं 100, मिनिमम रख दूं 0? अच्छा, काउंटर क्या है? 1 टू क्लास साइज. काउंटर में क्या क्लास आएगा? साइज 1. 1. स्टूडेंट के मार्क्स बताओ कोई भी. 20। क्या 20 ग्रेटर देन है मैक्सिमम मार्क्स से? जी। तो मैक्सिमम मार्क्स में क्या आएगा? 20। नहीं। अब इसके बाद कोई और वैल्यू दो, मिनिमम 100 ही रहेगा. 20 तो आ गया, अब एक और वैल्यू दो. 30। 30.
क्या 30 ग्रेटर देन है 20 से? जी। तो ये भी किस में आ जाएगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम में। मिनिमम 100 रहेगा। अब मुझे कोई कम वैल्यू दो। 15। क्या 15 ग्रेटर देन है 30 से? नो। तो ये किस में जाएगा? क्या 15 कम है 100 से? जी। तो ये किस में जाएगा? मिनिमम। मिनिमम में। तो मैक्सिमम क्या चल रहा है 13, मिनिमम क्या चल रहा है 15। 15। राइट। जी। अब समझ आया मैक्सिमम के अंदर क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम के अंदर क्या है? मिनिमम वैल्यू। अब यही काम इसमें करके देखो, एज अ होमवर्क करके देखना। तो जो मैक्सिमम की वैल्यू है वो गलत आएगी और मिनिमम की भी गलत आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैक्सिमम 100 कर देते हैं और मिनिमम 0 कर देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा क्या 15 जो है वो ग्रेटर देन है 100 से? नो। तो वो सर हमारी कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम है, वो वाला वैल्यू नहीं। वैल्यू क्या कह रही हो, रिपीट करो। हमारी कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम होगा, वो असली वाला मैक्सिमम और मिनिमम नहीं है। अच्छा, कंडीशन के हिसाब से। जिस इधर कंडीशन है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स अगर 100 से जो है कम है, वो मैक्सिमम में जाएंगे, और मिनिमम मतलब कंडीशन जैसे दी हुई है उस हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम होगा ना, असली वाला जो इंग्लिश वाला मतलब है वो वाला नहीं। अच्छा, तो पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपके, वो पहला वाला मतलब क्यों नहीं है? जी। अच्छा, और दूसरा वाला क्या कह रही हो कि कंडीशन के हिसाब से क्या मतलब, कि मिनिमम पहले लिख दूं मैक्सिमम बाद में लिख दूं? नहीं सर, मतलब अगर हमें सवाल में जो दिया हुआ है, जैसे इधर दिया हुआ है, मतलब हमें एक वैल्यू दी हुई है, उससे कम जो है मिनिमम में जाएगा और उससे ज्यादा जो है मैक्सिमम में जाएगा, तो मतलब सवाल के हिसाब से मैक्सिमम और मिनिमम है, असली वाली वैल्यूज सवाल नहीं दी। में लिखा हुआ होगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास है वो 999 है और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास वो 0 है। तो फिर आप करोगे ये कि मिनिमम को 999 कर दोगे और मैक्सिमम को 0 कर दोगे। जी। वैल्यू सवाल के अंदर दी जाएगी। अभी तो मैंने रैंडम ली है एक वैल्यू। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं। इसके बाद आई हैव लीनियर सर्च। और लीनियर सर्च काफी बड़ा है वैसे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिएगा सर। हाँ, एक काम ये करो कि अभी तक मैंने ये जितने भी सवाल कराए हैं ये अपने पास बुक से रिव्यू कर लो। फिर लीनियर सर्च और बबल सॉर्ट मैं अगली क्लास में कराता हूँ। और सर एवरेज। एवरेज तो आसान है। एवरेज के लिए आपने टोटल लेना है और एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो आपका टोटल आ जाएगा, वो भी हम सूडो कोड के अंदर फिट करते हैं। मतलब एवरेज जो ऊपर वाला सवाल है उसका एवरेज निकालने के लिए मैं करूंगा एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय क्लास साइज। ये रहा क्लास साइज, ये टोटल स्टूडेंट्स है। एवरेज के लिए टोटल डिवाइडेड बाय क्लास साइज लगेगा। सर बस डिवाइड करना होता है इसमें। जी हाँ, बस डिवाइड करना। तो एल्गोरिथम के बीच में हम पूरा फॉर्मूला लिखेंगे सर। बेटा एल्गोरिथम के बीच में नहीं, आप यहाँ लिखोगे एंड इफ के बाद या नेक्स्ट काउंटर के बाद इस तरह से। एवरेज इज इक्वल्स टू
टोटल डिवाइडेड बाय क्लास साइज, बस ये होगा तो आपका एवरेज निकल जाएगा। फिर प्रिंट आउटपुट करा देना, आप प्रिंट करा देना द एवरेजेस, और उसके बाद जो भी करना है। सर यही फॉर्मूला लगेगा हर जगह? जी बेटा यही लगेगा इसमें, तो एवरेज का फॉर्मूला तो सेम होता है ना, सिर्फ नाम चेंज होगा। ठीक। बस सर। जी बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।